Welcome on our channel SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA UGC NET JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET, Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon on our channel. This channel is run by professional experts. For further query, you can contact us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. We are also providing study material and live classes. For further update, you can comment us or you can mail us on our mail ID. So we will provide the mock test and previous year question paper in further videos, further updates. So for that you can contact us. So today we will start with the topic family and its function. What is family? What are the basic functions of the family? So कि family क्या होती है? जैसे कि we all are the part of family. Everyone in this world is a part of the family. So वो हमारी basic family क्या होती है? What is family? उसके क्या क्या function है? Why it is necessary? So today we start with the topic, and these are the some question asked in the previous year paper, and that can also be asked in the future NTA NET JRF. Basically कि what are the natures of the family, और what is the prominent कि किसने family को describe किया, कौन family किसने family को word दिया है. So these are the basic frequent question asked that can be asked by the NTA NET JRF. So what is family? Family is the most important primary group जो कि बहुत सिंपलेस्ट होता है, मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ सोसाइटी. अगर मैं बात करती हूँ व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, तो उसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट होती है दैट इज़ अ मदर. सो मदर इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली. सो बच्चे का जो सोशल लाइफ में व्हेन इट कम्स टू द सोशल लाइफ, तो उसका जो बेसिक एटीट्यूड्स होता है, बेसिक मैनरिज्म होता है, दैट स्टार्ट विद द फैमिली ओनली. तो फैमिली बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बेसिक एस्पेक्ट जो होते हैं हमारे डेवलपमेंट के, दैट आई ऑल्सो डिस्क्राइब इन द प्रीवियस वीडियोज़. तो उसके लिए हमारा फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत important element है. So without family one cannot develop the basic attitudes and basic mannerism. So basically what is family? Family is a small social group जो कि consist करती है father, mother और एक से ज़्यादा बच्चे. तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ फैमिली की, तो जो फैमिली होती है वो एक स्मॉल ग्रुप हो सकता है जो कि हमारा 4 पर्सन से लेके टू मैक्सिमम टू गोज़ टू द जॉइंट फैमिली. सो फैमिली इज़ बेसिकली अ स्मॉल सोशल ग्रुप. अब मैं बात करती हूँ कि जो ये फैमिली है, ये वर्ड कहाँ से हमारा ओरिजिनेट हुआ, ये फैमिली वर्ड हमारा किसने दिया, कौन सी लैंग्वेज से आया. तो बेसिकली जो हमारा फैमिली वर्ड है इट कम्स टू फ्रॉम अ रोमन वर्ड. तो रोमन वर्ड की अगर मैं बात करती हूँ मीन्स फैम्यूलस. फैमिलियस वर्ड है रोमन, तो वहाँ से हमारा वर्ड जनरेट हुआ, दैट इज़ नोन एज फैमिली. फैमिली का मतलब मैं इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फैमिली, इट कैन बी अ सर्वेंट जो कि हमेशा पे ऑफ करता है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैमिली. इट कम्स फ्रॉम द रोमन वर्ड फैमिलस. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द फैमिली. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द फैमिली की फैमिली बेसिकली अभी मैंने बात करी कि व्हाट इज़ फैमिली. फैमिली क्या होता है? फैमिली इज़ अ स्मॉल सोशल ग्रुप, इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ग्रुप. नाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द फैमिली? इट कैन बी बेसिस ऑन इमोशनल बायसनेस, यूनिवर्सल, limited size like say 4 person to maximum of to joint family to 20% to 16%, depends on the type of the family you are living in, joint family, nuclear family, blended or extended family. It can be a formative influence or a nuclear position as I described कि the types of the family. Basically members की responsibilities इसमें होती हैं, social regulation होता है, it can be permanent, it can be temporary. Say for example if I'm talking about like a person is living in a joint family, but after a time if he has to migrate from one place to the another place, so it can shift to a nuclear family. तो इसी तरह क्या होता है कि जो नेचर ऑफ फैमिली की होती है इट कैन बी अ परमानेंट. एक टाइम पे वो परमानेंट रह सकता है और एक टाइम पे वो हमारी टेम्प्रेरी हो सकती है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ family. So now I'm talking about the characteristic of the family. What are the characteristic? What is a family? What like क्या क्या features होने चाहिए एक family में? So that I'm talking about कि एक mating relationship. What is mating relationship? कि जब एक family हमारे एक existence में आती है, like when it comes into an existence, तो एक man and woman, when man and woman both एक एस्टेब्लिश करते हैं मेटिंग रिलेशन. लाइक आफ्टर मैन एंड वुमेन व्हेन दे मेट, व्हेन दे
मेड और जब वो मिले तो उनके बाद उनकी एक शादी हुई, तो शादी होने के बाद व्हेन दे डेवलप अ मीटिंग रिलेशन बिटवीन देम, दैट इज़ नोन एज अ मीटिंग रिलेशनशिप, देन दे स्टार्ट देयर ओन फैमिली. So that is a mating relationship when they both are made a relation, made some kind of relation between them, so they develop further a family. नाउ अ फॉर्म ऑफ मैरिज, बेसिकली अ फॉर्म ऑफ मैरिज की बात करती हूँ कि जो मेटिंग रिलेशनशिप, जब एक मैन और वुमेन दोनों मिले तो उन्होंने एक रिलेशनशिप डेवलप करी, तो उसको हमने एस्टेब्लिश करा एक काइंड ऑफ मैरिज से, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, या हमने उसको डेवलप किया मैरिज करके, तो दैट इज़ नोन एज अ फॉर्म ऑफ मैरिज. नाउ that another characteristic can be an economic provision. What is an economic provision? It is also the one of important characteristic of the family कि जो हमारी फैमिली का हेड होता है उसके पास दे हैव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक प्रोफेशन को कैरीज करता है. लाइक मेरी फैमिली के हेड है, से सपोज माई फादर एज अ हेड ऑफ द फैमिली, तो फादर इज़ बीइंग एंगेज इन सम काइंड ऑफ प्रोफेशन ताकि वो अपनी फैमिली को चला पाएँ. तो इकोनॉमिक प्रोविज़न का मतलब क्या है कि जो हमारे हेड होता है हमारी फैमिली का, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आई हैव टू गिव टू माई फैमिली, टू मेंटेन टू माई फैमिली, फॉर दैट ही अर्न्स मनी फॉर रेजिंग देयर इकोनॉमिक प्रोविज़न. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर हमारा इकोनॉमिक प्रोविज़न नहीं होगा तो हाउ वन फैमिली कैन बी रन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो वन और द अनदर पर्सन शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक प्रोविज़न ताकि वो अपनी फैमिली को आगे चला पाए. नाउ नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन हैबिटेशन, कॉमन सराउंडिंग. कॉमन हैबिटेशन और कॉमन सराउंडिंग की बात मतलब क्या हो सकती है? इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट. अगर अब मैं बात करती हूँ एक फैमिली की जिसमें कि उसको एक घर चाहिए होता है रहने के लिए. अब ये तो है नहीं, एक फैमिली अगर फैमिली है तो उसको दैट कैन नॉट बी लिव एनी वेयर. सो फॉर दैट इट रिक्वायर्स सम और लेस अ होम मेड और हाउस होल्ड फॉर इट्स लिविंग, बेसिकली उसको रहने के लिए. सो दैट इज़ नोन एज अ कॉमन हैबिटेशन और अ सराउंडिंग. बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की रियरिंग के लिए, कि हम बच्चे को ग्रोथ कर पाएँ, बच्चे का डेवलपमेंट करवा पाएँ, उसके लिए चाइल्ड रियरिंग के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूँगी तो उसके लिए इट नीड्स अ सराउंडिंग, इट्स नीड अ गुड सराउंडिंग. बेसिकली फैमिली में 4 पर्सन होते हैं, सो दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर, एंड उनको क्या होना चाहिए, दे मस्ट हैव देयर वन सराउंडिंग सो दैट द प्रॉपर चाइल्ड रियरिंग ऑफ द चाइल्ड कैन बी able to develop. So these are the basic characteristics of the family कि क्या क्या हो सकती हैं. दैट कैन बी अ मीटिंग रिलेशन, दैट कैन बी अ मीटिंग रिलेशन, दैट कैन बी अ फॉर्म ऑफ मैरिज कि पहले उसने मैन एंड वुमेन मेट अ रिलेशन, देन थ्रू द मैरिज दैट इज़ इंस्टीट्यूट एंड उसको हमने एस्टेब्लिश करवा दिया. आफ्टर व्हेन दे एस्टेब्लिश्ड सम काइंड ऑफ फैमिली, सो फॉर दैट दे नीड एन इकोनॉमिक प्रोविजन दैट नीड्स अ प्रॉपर सराउंडिंग फॉर द child rearing. So these are some of the characteristics that is also important with the exam point of view. So it must be understanding what is the characteristic of the family. Now I am talking about the functions of the family. कौन कौन से फंक्शन होते हैं फैमिली के कि जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं. हमने बात करी फैमिली क्या होती है, हमने बात करी क्या नेचर होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रोविज़न होना चाहिए, स्टेबिलिटी बेसिकली परमानेंट भी हो सकती है, टेम्प्रेरी भी हो सकती है, एंड आफ्टर दैट आई टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द फैमिली कि व्हाट आर द बेसिक्स फंक्शन जो कि फैमिली के लिए बहुत नेसेसरी है एक फैमिली को रन करने के लिए. सो जो फंक्शन ऑफ फैमिली किसने डेवलप किया, किसने इसको थ्योराइज्ड किया, दैट इज़ अ मैकलेवर, जिन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस भी दिए हैं. लाइक वेरियस थ्योरिस्ट हुए, वेरियस साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फैमिली की डेफिनेशंस को दिया, बट मैकलेवर ने फंक्शंस ऑफ फैमिली को डिवाइड किया, बताया कि हमारे फंक्शंस क्या हो सकते हैं फैमिली के. दैट इज़ इनटू द 2 कैटेगरीज दैट कैन बी एसेंशियल फंक्शन एंड फर्दर इट विल डिवाइड इनटू द नॉन एसेंशियल फंक्शन. सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल फंक्शंस कि क्या एसेंशियल हो सकता है. दैट कैन बी अ सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेक्स नीड्स, जैसे कि हमें उन्होंने बताया मैकलेवर ने कि सेक्स नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइक लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप के लिए जो मेल और फीमेल में होती है, डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए, जो उनकी सेक्स इंस्टिंक्ट होती है फॉर द नॉर्मल पर्सनैलिटी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए द फैमिली इज़ वेरी नेसेसरी. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन. लाइक इट इज़ ऑल्सो द वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली कि चाइल्ड रियरिंग के लिए, चाइल्ड प्रोडक्शन के लिए, लाइक वन और मोर अनदर फैमिली नीड्स आर चिल्ड्रन कि ताकि वो आगे अपनी फैमिली को
चला पाए, अपने एंसेस्टर्स उस पे चला पाए, सो दैट नीड्स फैमिली. So basically they permit a second marriage, like Hindus, there is religions like Hindus and Muslim, so every religion have their aspects for the growing. Like family ही एक ऐसा institution होता है जहाँ पे हम एक बच्चे का अच्छा child development कर सकते हैं या child rearing कर सकते हैं. Next is provision of home. होम प्रोविज़न के लिए, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द फैमिली, कि फॉर द होम प्रोविज़न, लाइक फैमिली जहाँ पे हम अफेक्शंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं जो भी ह्यूमन बींग्स की हो सकती हैं. लाइक फैमिली इज़ मेड अप ऑफ मदर, फादर एंड द चिल्ड्रन. सो व्हाट इज़ द फैमिली फंक्शन, कि अफेक्शंस को सेटिस्फाई करने के लिए, बच्चे के रियरिंग के लिए, जहाँ पे लाइक देयर इज़ अ लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू इन एनी काइंड ऑफ सोशल पब्लिक और सोशलाइजेशन, तो देयर इज़ नॉट एज सच एज वार्मनेस एंड लव देयर वी विल गेट एज वी कैन गेट इन आवर फैमिली. सो उस लव अफेक्शन के लिए, उस वार्मनेस के लिए द फैमिली इज़ वेरी नेसेसरी. अगर मैं बात करती हूँ कि लाइक वन एंड मोर अनदर हेड ऑफ द फैमिली इज़ अर्निंग फॉर रनिंग देयर फैमिली, तो उसके लिए वो बाहर जाते हैं, अर्न करते हैं, देन दे कम्स टू द फैमिली, टू देयर होम. तो उस होमनेस, उस फैमिली में उनको एक वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, दैट इज़ अ वर्क ऑफ द फैमिली, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द फैमिली, सो दैट दे कैन शेड देयर फटीग, अपनी जो उनकी थकान होती है उसको वो रिमूव कर सकते हैं. तो दैट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फैमिली, प्रोविजन ऑफ होम. नाउ व्हाट आर द सम नॉन एसेंशियल फंक्शन ऑफ द फैमिली. अभी हमने बात करी एसेंशियल फंक्शन की, वो क्या क्या हो सकते हैं, लाइक प्रोविजन ऑफ द होम, for the love, affection, child rearing, and there are some non-essential function of the family that can be economic point of view से अगर हम देखें, लाइक ट्रेडिशनल फैमिली होती हैं जैसे, सो दे मेड द मोस्ट ऑफ द गुड्स जो होते हैं उनके कंजप्शन के वो घर पे ही बनते हैं, सो इट कैन बी सर्व एज इकोनॉमिक यूनिट. नेक्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो रिलीजियस ट्रेनिंग के लिए, लाइक हम अपने कल्चर को, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हो सकता है, लाइक हम अपने कल्चर को पहचानते हैं कि हमारा कल्चर क्या है. लाइक इन हिंदूज दे सेलिब्रेट होली, दिवालीज, वेर एज इन मुस्लिम दे सेलिब्रेट ईद. सो एवरी रिलीजन हैव देयर ओन डिफरेंट कल्चर. तो उस कल्चर को समझने के लिए दैट इज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली, कि हम अपने कल्चर को जान पाएँ. नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल. बेसिकली जो पेरेंट की गाइडेंस होती है एजुकेशन पे, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो भी हमें सिर्फ फैमिली से ही मिल सकती है, कि बच्चे को आगे किस करियर को चूज़ करना है, किस गाइडेंस में जाना है. तो दैट इज़ ओनली बी गाइडेंस ऑफ द पेरेंट्स, जो उनको पेरेंट्स गाइड करते हैं, एंड दैट इज़ ओनली विद start with the family, and then after it's come to the social life. After education, the health is also important. Like अगर if a person is not healthy, तो वो कैसे अपनी लाइफ को सर्व करेगा. तो for a family, a healthy man should be a important, कि वी कैन मेक आर हेल्दी लाइफ विद अ फैमिली. रिक्रिएशन के लिए, रिक्रिएशन मतलब लाइक वी कैन यूज़ टू सिंग, डांस टुगेदर, एंड वी कैन विजिट द फैमिली रिलेशन. जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं उनके हम जा सकते हैं. तो व्हेन देयर द स्मॉल सोशल ग्रुप विल मीट टुगेदर, सो इट्स सम और काइंड ऑफ रिक्रिएशन इन द फैमिली. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविक, व्हाट इज़ अ सिविक. सिविक होता है कि जैसे लव हो गया, कॉपरेशन, सेक्रीफाइस, ओबीडियंस. सो इस तरह की जब क्वालिटीज़ हम अपने बच्चे को सिखाते हैं फैमिली के अंदर, तो दैट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अ सिविक, जो कि हमें नेक्स्ट सोशलाइजेशन के लिए वर्क करता है. तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ लव, कॉपरेशन, सेक्रीफाइस, ओबीडियंस in our child, that is only happens in the family, that makes the child for the social life, for their socialization. So it is a very important point for the point of view children, कि हम बच्चे के अंदर इन क्वालिटीज़ को डेवलप करें, so that आगे चलकर उसको सोशल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. और ये हमारा फैमिली से ही स्टार्ट होता है. सोशल की बात करती हूँ कि फैमिली जो होती है हमें सोशल बनाना सिखाती है. उसने हमारे अंदर पहले डेवलप करी क्वालिटीज़ फैमिली ने, दैट इज़ ओनली हैपन्स विद द पेरेंट्स. और उसके बाद उन्होंने हमें सोशल होना सिखाया. हमारे अंदर नॉलेज ऑफ सोशल की, सोशल क्या होता है, कैसे हमें लोगों से मिलना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, दैट इज़ हमें फैमिली सिखाती है. तो इट इज़ सोशल कंट्रोल ओवर द मेंबर्स दैट कैन ओनली स्टार्ट विद द फैमिली. नाउ द रोल ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन का क्या रोल हो सकता है, कि सजेशन देना, लैंग्वेज सिखाना. सपोज वी इंडियंस, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इन हिंदी. लाइक हिंदी इज़ आर
मातृभाषा जैसे हम कहते हैं, तो हिंदी हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। हिंदी हमें लाइक हम बच्चों को सिखाएंगे तो दैट उनको सोशलाइजेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन कंट्रीज़, तो देयर लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, सो वहाँ के बच्चों को इट इज़ नेसेसरी कि हम उनको इंग्लिश सिखाएं। सो इट इज़ द रोल ऑफ द फैमिली इन सोशलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी एक फैमिली ही नहीं होगी तो वी कांट लर्न द सोशलाइजेशन, वी कांट लर्न द क्वालिटीज़ ऑफ द लव, कॉपरेशन and the affection. So the family is very important part from every aspects of the development. Basically जो family होती है, in short if I am conclude my slides, my video, तो it is supposed to be that कि जो family होती है हमें हमारे ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट पे हमारे वर्क करती है, हमें डेवलप करती है, सोशलाइजेशन के लिए हमें बनाती है. सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड in your NT NET JRF or TGT PGT exams. So with this video we can learn कि what are the natures of the family, as I talked about in my previous lecture, कि what are the natures of the family. It can be limited in size, yes. It can be nuclear position, limited in size. It can be 2 to 4 to 16%. It can be nuclear position, obviously a formative influence. So you can take the all of the above. Basically जब हम किसी भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन करते हैं तो वी हैव टू सी कि व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन एंड व्हाट आर द क्वेश्चन ही इज़ आस्किंग, कि उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है और कौन से हमें ऑप्शन दिए हैं जो कि हमारे उस क्वेश्चन से मैच हो रहे हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. बेसिकली एवरीवन हैव इट्स नॉलेज, बेसिक नॉलेज कि व्हाट इज़ नेचर ऑफ द फैमिली, व्हाट इज़ फैमिली, बट एग्ज़ाम में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज़ समवेयर ट्रिकी. लाइक हमें उसमें आंसर्स करना आना चाहिए कि हम उसके क्वेश्चन को समझ भी पा रहे हैं या नहीं. इफ़ यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, इफ़ यू अंडरस्टैंड कि वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन यू कैन ईजिली शॉर्ट आउट द क्वेश्चन. अब मैं इसमें ही वी कैन इवन मोल्ड दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज़ नॉट द नेचर ऑफ द फैमिली, कौन सी नेचर ऑफ द फैमिली नहीं है. अब वहीं पे वो नन ऑफ द अबव दे दे तो यू हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन कि उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कैसे है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द फैमिली. बेसिकली जो फंक्शन ऑफ द फैमिली हैं वो किसने दिए हैं हमें, तो हु इज़ द फैमिली की डेफिनेशन है जो कि बहुत सारे थ्योरिस्ट ने दिया है. मैक्लाइवर हो गए, निम्कॉफ, क्लेयर, एलियट, मैरेल. तो बेसिकली किसने फैमिली के फंक्शंस को डिफ़ाइन किया है, किसने फैमिली के फंक्शन को डिवाइड किया है. तो द ऑप्शन इज़ मैक्लाइवर, एरिक एरिक्सन, क्लेयर, फ्रूड. सो इफ़ यू स्टडीड the chapter, if you have that basic concept ki who is MacLever, who is Eric Erikson, who is Clare and who is Sigmund Freud, तो then you can easily sort out कि किसने हमें फैमिली का फंक्शन दिया. तो the option is right option is MacLever. So basically these are the nature of the question that is majorly asked in the NT NET JRF or various competitive exams. So thank you so much. For any further query and further updates, you can comment us on our channel SB Scholars Academy, or you can mail us on our ID sbscholaracademy@gmail.com. Thank you so much.